Bismillahirrahmanirrahim. My name is Suleiman Shah, and the topic we will be presenting today is Redmine. These These are my group members. So Redmine is a very flexible web-based project management and issue tracking tool. It is free and open source software with 3.7K GitHub stars and 2K GitHub forks. It is written in Ruby on Rails framework, which is a very popular server-side web framework. It is a cross-platform and cross-database software. About 124 companies use Redmine, including CTT, which is a very popular Portuguese company, Uniqlo, and Weebly. Sentry, Datadog, Bugsnag, Zilp, and Flowdog are some of the popular tools that integrate with Redmine. We will also be discussing more third-party tools in these presentations which integrate with Redmine. Features. Redmine allows tracking of multiple projects. It supports flexible role-based access control, which allows us to define permissions that members have on a project. You can create new roles or edit existing ones using this feature of Redmine. It also includes an issue tracking system. It also features a Gantt chart and calendar, which is very helpful in scheduling things and managing tasks effectively. It integrates news, documents, file management, allows web feeds, email notifications, supports per project wiki, per project forums, which is also helpful in communication between team members. And it also allows simple time tracking. Other features include custom fields for issues, time entries, project and users. It also includes repositories feature which allows as Redmine natively supports integration with different SCM tools such as Bazaar, CV, Skid. It is helpful in creating repositories. And Redmine also natively supports LDAP authentication using more than multiple LDAP directories, which is very helpful in process of validation of users, that is username and passwords. It also allows user self-registration and supports 49 languages, allow multiple databases, and allows plugin usage, which is very helpful in better user experience. And we will also be discussing some of the popular plugins in this presentation. It also provides us full APIs. And this working can be explained in this section by that it might also helpful in tracking tasks and projects, as includes time tracking and issue tracking, which is that if bugs and issues can be tracked using Redmine. And time tracking is very important in on tracking deliverables of tasks, etc. So it is a role-based access control which is helpful in very helpful in controlling and creating new roles or edit existing ones, which is I already discussed. And it's very helpful in assigning different tasks to employees and monitoring the progress of those tasks. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hassan Hanif and I will presenting basic flow of project and issue creation in Redmine. As you see the interface of Redmine, from here we can create a new project. For this purpose we have to click new project button. After clicking new project button, we have to enter project information such like name, description, etc. As you can see further details here. You can also see different tabs like module, members. As my previous group members already told that Redmine support role-based access control, we can do that here, which comes under stakeholder management. Also we can add versions and wiki, etc. As a project is created, you can also see options like issue, new issues, Gantt charts,
calendars, etc. As risk management is also a part of project management, by using Redmine, we can implement that by creating issues. Issue can be created for team members working on a project by clicking new issue button, so the team member will be notified and work to be resolved that issues. For that purpose, a person has to fill the new issue form to enter detail about the issue like subject, tracker, structure, priority, and assignee, and much more thing as you see on that page. When the issue is created, concerned team member will able to see and track the issue. They can also many options you can see on your right side which can use by concerned team members. Further, once the issue is created, it will be visible in Gantt charts, which will discuss in detail by my next group member. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा उसामा हैदर। ये जो फीचर है गैंट चार्ट का, इसका रेडमाइन का अपना बिल्ट इन फीचर है, जिसके अंदर क्या नाम है आप अपने टास्क क्रिएट कर सकते हैं। टास्क के एक आप स्टार्ट डेट ड्यू डेट रख लेंगे, इसके ज़रिए आप क्या नाम है आप एक तरह स्केड्यूल मैनेज हो जाएगा। इसमें आप क्या नाम है लिंक कर सकते हैं टास्क को जो आपस में रिलेटेड हैं, जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। आप एक तरह की इंटीग्रेशन मैनेजमेंट भी हो जाएगी इसके अंदर आपकी। और आप क्या नाम है इसमें जो है ना टास्क के अंदर आप ये भी साथ नोट में डाल सकते हैं कि क्या नाम है कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आप एक तरह रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, क्या क्या टाइम लगेगा, कितना होगा, आपको एक तरह सामने आप क्लियर इमेज आ जाएगी। इसमें एक तरह का आपका वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक कैलेंडर है। कैलेंडर के अंदर जो है आपके नाम में सारे जो स्केड्यूल है वो देख सकते हैं कि कौन सी कोई मीटिंग क्रिएट हुई है, जो कोई फर्ज करें कोई इशू क्रिएट किया गया है तो वो आपको कैलेंडर में नज़र आ जाएगा। आपको एक तरह का एक फुल इमेज नज़र आ जाएगी कि आपका क्या स्केड्यूल है। नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ के अंदर क्या नाम है आप एक एक्टिविटी क्रिएट कर लें कि आप उसमें क्या नाम है रोल दे देंगे, ये बंदे क्या नाम है वो एक्टिविटी करेंगे, परफॉर्म करनी है। और उसमें आप क्या नाम है उसका टाइम ड्यूरेशन भी रख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक डिज़ाइन के आपने कोई फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है तो उसके आप एक डिज़ाइन के बना देंगे एक्टिविटी, उसमें टीम को आप बता देंगे ये रोल के बंदे जो है इस ऊपर वर्क करेंगे और ये टाइम ड्यूरेशन है। ये आपको क्या नाम है साथ जो लिमिटेशन होंगी वो आप इसके साथ दे सकेंगे। आगे आपके पास ये विकीज़ हैं और इसमें क्या नाम है ये विकीज़ न्यूज़ जो है ना इसमें आप क्या नाम है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कोई नोटिस देना हो या एज ए कम्युनिकेशन आपने कोई कम्युनिकेट करना हो, कोई आप एक तरह की फाइल्स जो है ना अपलोड कर सकते हैं। आपने कोई नोट दे रही है कि फ़र्ज़ करें कि आपने जी डेडलाइन है, कोई रिक्वायरमेंट में चेंज आ गई है या इस तरह के आप क्या नाम आप इसमें बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ आगम पाशा। अच्छा, जो थर्ड पार्टी हमारे पास है कम्युनिटी रेडमाइंस का प्रोवाइड करती है उसमें जेवर्स बॉट है, ठीक है। इसका जो बेसिक मकसद ये एक पर्ल लैंग्वेज में ये लिखी गई है और इसका बेसिक मकसद जो है वो इम्प्लीमेंट करना है कि इसको नेशनल लैंग्वेज इंटरफेस को टाइम ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोबोट रेडमाइन प्लगइन, ठीक है। इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट रेडमी इशूज़, ठीक है। विद बाकी सूरत में हमें जो हमारे पास जो रेडमी इसके माइन के इशू होते हैं वो हमें क्या करते हैं शो करवाती है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास इशूज़ है कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, प्लगइन हो सकता है, ठीक है, टेस्टिंग हो सकता है। इसी तरह नेटबीन रेडमीन इंटीग्रेशन है, वीडियो स्टूडियो रेडमाइन टास्क है, ठीक है। इसमें यह है कि इंटीग्रेट करने के लिए नेटबीन्स को रेडमाइन के साथ ये यूज़ होती है, नेटबीन इंटीग्रेशन और वीडियो स्टूडियो के साथ जो टास्क को शो करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास ज़ेबिक्स है, ठीक है। ज़ेबिक्स क्या है कि बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हमारे पास वर्चुअल मशीन क्लाउड सर्विस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें है फॉर एग्जांपल एक है हाईवाइन है, ठीक है, रेड टाइम है। हाईवाइन हमारे पास क्या है, ठीक है ये हमारे पास कनेक्ट करवाती है कि इसको हमें कनेक्ट करवाती है रेड टाइम टीम रेड माइन जो टीम प्रोजेक्ट होती है उसके साथ, ठीक है। रेड टीम एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप क्लाइंट में कमांड एंड इंटरफेस है जो लिसनिंग इशूज़ के लिए यूज़ होती है, सर्चिंग के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे जे रेड माइन आ जाता है, ठीक है। जे रेड माइन का जो है ये इसकी वर्जन 1.10 है, 1.9 है, इसके अलावा ये यूज़ हो रही हैं। और ये जो प्लगइन है इसको जो जावा क्लाइंट होता है इसको कॉरस्पॉन्डिंगली इंप्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, यूज़फुल प्लगइन में हमारे पास आ जाता है
जो हमारे पास इजी रेड माइन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो इजी रेड माइन है, वो क्या है कि एक एक्सटेंसिबल रेड माइन पूरे एक अपग्रेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे हमारे पास जो मोस्ट वांटेड फीचर्स है उसमें ये इजी गैंट है, ग्लोबल गैंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स है। इजी गैंट से मुराद ये है कि ग्राफिकल व्यू होता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड बार चार्ट होता है, उसकी तरफ हमें ये शो होता है, और ये कि स्केड्यूल करने के लिए टास्क को यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो ग्लोबल गैंट होता है, ये एसोसिएटेड टास्क के लिए यूज़ होता है, माइलस्टोन रिलेशन और रिलीज एक्सेट्रा के लिए। रेडमाइन एजाइल प्लगइन जो है ये क्या करता है कि हमारे पास टास्क कॉर्ड्स ऑन एजाइल बोर्ड, जो हमारे पास एजाइल डेवलपमेंट में हम स्क्रम बोर्ड को यूज़ करते हैं प्रायोरिटाइज करने के लिए, टास्क असाइनिंग के लिए, उसके लिए हमारे लिए ये यूज़ होता है एजाइल प्लगइन जो है। जो CRM प्लगइन है, ये कि CRM प्लगइन हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनमें जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अटैचमेंट टू कॉन्टैक्ट्स होता है, ठीक है, डीज इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट्स होता है, ठीक है, कस्टम फील्ड्स फॉर कॉन्टैक्ट्स और इनको डीज नोट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन बैरियर हमारे नॉलेज एरिया के दरमियान आता है उनको तोड़ने के लिए यूज़ होता है। प्रोज एंड कॉन्स, ये इसमें प्रोज ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी पैकेज में और मल्टीपल कंप्यूटर पर यूज़ हो सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा टूल और बहुत इसके लिए यूज़ होता है। ब्रॉड रेंज ऑफ फीचर्स हैं इसके, ठीक है, और स्क्रम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बेहतरीन यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास इसके हैं कि ये किसी को भी जो है प्रोजेक्ट और टास्क असाइनिंग की ये अथॉरिटी देता है। ये इसमें लाजमी है कि आपको किसी को स्पेसिफिक टास्क जो है वो असाइन कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है टीम के दरमियान कोलैबोरेशन के लिए वाइल परफॉर्मिंग एजाइल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसके कौन है उसमें यह है कि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें मिसिंग है। फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो हमारे पास इसका जो टूल है उसमें यह है कि एजाइल डेवलपमेंट के टूल में हमारे पास इसके एक फीचर्स जो लैंग्वेज ट्रांसलेट किया वो मिसिंग है, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये है कि इसको इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए हमें काफ़ी टाइम टेकन ये एक्टिविटी है कि इसमें हम वर्किंग एक्सपीरियंस करें, उसके बाद हम इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। कुछ इसके डैशबोर्ड फीचर्स हैं वो मिसिंग होते हैं, ठीक है, और उनको एक्सेस करना मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास हमें अपने जो मेंबर्स और कोलीग्स हैं उनके साथ एक एक्सपीरियंसेबल टाइम गुजारना चाहिए ताकि हम इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए और हमें इसमें काफ़ी हद तक सोच समझ के काम करना पड़ता है। ये हमारे पास कुछ भी रेफरेंस है जिनसे हमने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट की है। थैंक यू वेरी मच।